السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے. اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپکس کور کیے تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے. ہم نے اس کی مختلف تعریفیں پڑھی تھی. جو مختلف ماہر معاشیات تھے انہوں نے جو تعریفیں بیان کی تھیں ان کے مطابق ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ کوئی بھی ملک جو اشیاء یا خدمات جو ہے مہیا کرتا ہے ایک سال کے عرصے کے دوران، تو ان کی جو مالیت ہوتی ہے ان کو اگر ہم جمع کر دیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جاتی ہے. اسی طرح سے پھر ہم نے اس کی ایک اور تعریف پڑھی تھی کہ قومی آمدنی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ وہ اشیاء و خدمات پیدا کر رہے ہیں، یعنی کہ جو عاملین پیدائش ہیں، ان کے جو معاوضے ہیں اگر ہم ان کو بھی جمع کر دیں تو بھی ہمارے پاس قومی آمدنی نکل آتی ہے. تیسری چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عاملین پیدائش ہیں یہ کیا کرتے ہیں، جب یہ اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو ان کو معاوضے ملتے ہیں وہ معاوضے کیا کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو گویا کہ جو یہ اخراجات کریں گے اگر ہم ان کو بھی جمع کر دیں تو بھی ہمارے پاس قومی آمدنی نکل سکتی ہے. تو ان تینوں جو کانسیپٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس 3 طرح کے طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم قومی آمدنی کو ماپ سکتے ہیں، اس کی پیمائش کر سکتے ہیں. تو تعریفوں کے مطابق ہی ہمارے پاس یہاں پہ 3 طریقے لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے پیداوار کا طریقہ، یعنی پروڈکٹ میتھڈ. قومی آمدنی کو ناپنے کا دوسرا طریقہ ہے آمدنی کا طریقہ، یعنی کہ انکم میتھڈ. اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے اخراجات کا طریقہ، یعنی ایکسپینڈیچر میتھڈ. ٹھیک ہے، اب ہم 1 بائی 1 کیا کرتے ہیں، ان طریقوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ طریقے کس طرح سے قومی آمدنی کو ناپتے ہیں. ہمارے پاس جو آمدنی کی پیمائش کا پہلا طریقہ ہے وہ ہے پیداوار کا طریقہ، پروڈکٹ میتھڈ. اچھا، اس طریقہ کار میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہم آسان الفاظ میں سمجھیں کہ کوئی بھی ملک ایک سال کے عرصے میں جو بھی اشیاء پیدا کرتا ہے یا خدمات مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا کیا کریں گے، ہم مجموعہ لے لیں گے. لائک کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے سیکٹرز ہوتے ہیں اکانومی کے اندر. جیسا کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ زرعی جو ہماری پاس اشیاء ہیں وہ کون کون سی پیدا کی ہیں، جس میں گندم، کپاس، دالیں، سبزیاں، پھل وغیرہ جتنی بھی پیدا کی گئی ہیں ایک سال کے عرصے کے دوران ان سب کی ہم مالیت لے لیں گے. پھر اسی طرح سے معدنی اشیاء کون کون سی پیدا کی گئیں، وہ تمام اشیاء جو معدنیات کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں، مثلا لوہا، کوئلہ، نمک، قدرتی گیس، تیل کے ذخائر وغیرہ. یہ ہم نے کتنی اشیاء جو تھیں وہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کی تھیں. پھر صنعتی اشیاء جو ایک ملک نے بنائی ایک سال کے عرصے کے دوران، اس میں کیا ہو سکتا ہے، کپڑا ہو سکتا ہے، مشینری ہو سکتی ہے، ادویات ہو سکتی ہیں، الیکٹرانکس کا سامان ہو سکتا ہے، دیگر جو صنعتی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی. پھر خدمات کون سی مہیا کی گئیں، مثلا ڈاکٹروں نے، انجینئروں نے، وکیلوں نے، یا جو ہم جس طرح سے ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں جو اپنی خدمات دیتے ہیں، تو ان کی جو مالیت ہو گئی یا ان کو جو تنخواہیں دی گئیں یا ان کو جو آمدنی حاصل ہوئی، تو کیا ہوگا کہ ان خدمات کا بھی ہم مجموعہ جو اس میں شامل کر دیں گے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیری فارمنگ ہے یا اور لائف سٹاک سے حاصل ہونے والی جو آمدنیاں اشیاء پیدا کی گئی ہیں ان سب کا مجموعہ لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب ہم ان کی مالیت کو جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جائے گی. تو وہ جو تعریف تھی کہ اشیاء و خدمات کی جو مالیت ہے اس کا مجموعہ قومی آمدنی کہلاتی ہے، تو وہ والی تعریف کے مطابق یہ طریقہ کار پیداوار کا طریقہ کہلائے گا. اب اس طریقہ کار میں کچھ احتیاطیں ہیں. پہلی احتیاط جو اس طریقہ کار کے اندر ہے وہ ہے دوبارہ شمار نہ کرنا. ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ اشیاء ہیں، جیسے کپڑا ہے. کپڑا ہمیں پتہ ہے کہ کپاس سے بنتا ہے. کپاس جو ہے وہ ایک زرعی شے ہے، کپاس ہوتی ہے، کپاس سے کیا ہوتا ہے، دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے پھر انسلا کپڑا بنتا ہے، اور انسلے کپڑے سے پھر ہم سلا ہوا کپڑا جو ہم پہنتے ہیں وہ ملتا ہے. تو اگر ہم کپاس کی مالیت قومی آمدنی میں شامل کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے جو دھاگا بنے گا اگر ہم اس کی بھی مالیت شامل کر لیں گے تو کیا ہوگا، یہ ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گی. 2 دفعہ ایک ہی چیز کی مالیت 2 دفعہ شامل ہو جائے گی. جیسے اگر ہم فرض کر لیں کہ جو ایک ملک میں کپاس پیدا کی گئی وہ 100 روپے کی تھی، اور اس سے جو دھاگا بنا اس کے اوپر 20 روپے لگا کے ہم نے اس کا دھاگا بنا لیا تو اس کی مالیت ہوگی 120. اب ہم اگر یہ کر دیں کہ کپاس 100 روپے کی لگا لیں اور 120 کا دھاگا لگا لیں تو یہ 220 روپے بن جائیں گے، جبکہ اصل میں اس کی مالیت کتنی ہے، 120. 100 روپے کی کپاس اور 20 روپے اس کو دھاگا بنانے کی لاگت. پھر اسی طرح سے اگر ہم 30 روپے اس میں اور شامل کر دیں کہ دھاگے سے کیا ہو جائے گا، کپڑا بنانے پہ ہماری 30 روپے لاگت آئی، تو اب یہ کتنے ہو گئے، 150. مجموعی مالیت کتنی ہوگی، 150. تو اگر ہم غلطی کر دیں کہ کپاس 100 روپے کی لگا لیں، دھاگا 120 کا لگا لیں اور کپڑا 150 کا، تو یہ اب
3 दफ़ा काउंटिंग हो जाएगी कपास की मालियत की। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ तो फाइनल प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी जो आखिरी चीज़ हमारे पास आई है। जैसे कि अगर हम कहें जी कि हम कपड़े की मालियत ले लेते हैं तो वो 150 रुपये आएगी, ठीक है। या फिर कपास की मालियत में शामिल कर लेंगे 20 रुपये लागत धागा बनाने की और 30 रुपये लागत कपड़ा बनाने की, तो भी हमारे पास दोनों सूरतों में 150 रुपये आएंगे। यहाँ पे जो किताब में हमें एग्जांपल मिल रही है उसमें क्या लिखा हुआ है कि गंदम की कीमत उन्होंने ली हुई है, आटे की कीमत है, फिर रोटी की पकाई और फ़रोख्तकार का मुनाफा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है जिसमें पैदावार का मरहला बताया गया है, अगले में इजाफी कीमत है और तीसरे में मुख्तलिफ मराहिल पर कीमत है, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने भी कपास की आपको एग्जांपल दी थी, कपास से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से सिलावा कपड़ा बनता है और फिर फ़रोख्तकार उसको मार्केट में बेचता है। तो ये मिसाल भी तकरीबन उसी तरह की है। दूसरा इसके अंदर जो हमें देखना पड़ता है वो क्या होता है, बिला मुआवजा खिदमात। बिला मुआवजा खिदमात हमने देखा था कौमी आमदनी के जब मुख्तलिफ तसव्वुरात पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी। जैसा कि अगर हम कोई चीज़ है, अगर कारोबार कर रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, तो अगर हम वो ख़ुद अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि हमने वो किसी से ख़रीदी नहीं है, लेकिन हम वो ख़ुद जो है सर्विसेज ख़ुद के लिए कर रहे हैं या किसी को बिला मुआवजा दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो वो खिदमात भी जो हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं होंगी, ठीक है। तो तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है मख्फी या ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ। इस तरह से जब हम कौमी आमदनी ये पैमाइश कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से काफ़ी सारी ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो कि हमें जिनका अंदाज़ा नहीं होता या जो हमारी कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं बन रही होती, ठीक है। तो इस एक ये चीज़ है जो कि इस आमदनी के तरीक़ेकार में शामिल नहीं हो पाती। उसके बाद हमारे पास आता है आमदनी का तरीका, यानी कौमी आमदनी को पैमाइश करना है और हमने उसके लिए हमारे पास तरीका कौन सा होगा, आमदनी का तरीका। अब इस आमदनी के तरीके में हमने देखा था कि जो आमलीन पैदाइश हैं, ज़र, ज़मीन, सरमाया, मेहनत वगैरह, तो क्या होगा कि उनकी जो मुआवजे होंगे जब हम उनका मजमुआ भी ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो कौमी आमदनी आ जाएगी, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। कौमी आमदनी की पैमाइश किस तरीके में तमाम आमलीन पैदाइश के साल भर के मुआवजों की मजमूई मालियत का अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। मसलन ज़मीन का कितना लगान पे किया, मज़दूरों को कितनी उजरत दी गई, सरमाया के ऊपर कितना जो है वो सूद अदा किया गया और आजरीन को कितना मुनाफा मिला है। तो इन सब को भी जमा कर लेंगे तो भी कौमी आमदनी हमारे पास आ जाएगी, उतनी ही आ जाएगी जो हमने पैदावार के तरीके या जो ऊपर वाला प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था उससे निकाली होगी, ठीक है। इसमें कुछ एहतियातें किन किन को मद्देनज़र रखना है कि इंतकाली अदायगियाँ, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, पेंशन वगैरह हैं, वज़ाइफ हैं, तहफ़ हैं, ज़कात खैरात वगैरह हैं, तो ये आमदनी का हिस्सा नहीं बनती, तो इसको इसलिए कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाएगा। इस तरह से गैर कानूनी आमदनियाँ वो भी क्या होती है कि वो कानूनी नहीं होती, तो वो कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं हुई होती, तो इसलिए वो भी आमदनी में शामिल नहीं हो पाती। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका आ जाएगा और उसकी कुछ एहतियातें आ जाएंगी। तीसरा तरीका होगा अखराजात का तरीका। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जो आमलीन पैदाइश हैं, क्योंकि उन्होंने जब ये अपनी खिदमात फ़राहम की तो उसके बदले में अशिया पैदा हुई, उन अशिया को जो है फ़रोख्तकार ने जब बेचा तो उसके बाद जो मुनाफा हासिल हुआ या जो आमदनी हासिल हुई उसने आमलीन के दरमियान में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। फिर वो आमलीन इन्हीं पैसों को खर्च करते हैं बाज़ार में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। तो अगर हम इनके अखराजात को भी जमा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अखराजात के तरीके से कौमी आमदनी निकल आएगी। इस तरीके पे पैमाइश के मुताबिक मुल्क के तमाम बशिंदों की मुख्तलिफ अशिया और खिदमात पर होने वाले अखराजात को जमा किया जाता है जिससे कौमी आमदनी की पैमाइश होती है, ठीक है। ये अब इस तरीक़ेकार के अंदर क्या होगा कि निजी सरफ़ी अखराजात आ जाएंगे, निजी सरमायाकारी के अखराजात आ जाएंगे, सरकारी सरफ़ी और सरमायाकारी अखराजात आ जाएंगे और बैरूनी शोबा के अखराजात आ जाएंगे। अगर हम देखें तो ये चारों चीज़ें वही हैं जो हमने सबसे पहले ख़ाम मुल्की पैदावार की तारीफ़ में हमने पढ़ी थी, जो जीडीपी की एक्सप्लेनेशन C+I+G+NX, ये वही चारों चीज़ें हैं जो इन अखराजात के तरीके के अंदर शामिल की जाती हैं, ठीक हो गया। तो इन 3 तरीक़ों की मदद से हम जो है कौमी आमदनी को समझ सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है वो है कौमी आमदनी का दायरवी भाव, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना है। नीचे एक डायग्राम हमें नज़र आ रही है, इसकी मदद से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स इसके सारे वही हैं पुराने वाले जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो दाएँ हाथ पर आपको घराने या हाउस होल्ड्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि हम लोग कंज्यूमर्स, हम ही लोग चीज़ें बना भी रहे होते हैं, अपनी खिदमात
दे कर किसी फैक्ट्री या कारोबारी इदारे को, और उन्हीं अशिया को फिर हम बाज़ार से ख़रीद भी रहे होते हैं। तो एक तरफ कौन आ गया, हम लोग आ गए, घराने, जो फैक्टर्स भी हैं, जो अपनी खिदमात भी मुहैया करते हैं कारोबारी इदारों को, और उसके बदले में जो आमदनी हासिल होती है, और वही अशिया खिदमात फिर हम बाज़ार से ख़रीद के अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। बाएं हाथ पे आपको नज़र आ रहा है कारोबारी इदारे या फर्म्स, जो अशिया खिदमात पैदा कर रही होती हैं। अब पता है आपको कि कारोबारी इदारे, उसमें हम ही लोग काम कर रहे होते हैं, अपनी खिदमात मुहैया करते हैं, जिसके बदले में वो कारोबारी इदारे कोई शय जो है वो पैदा करते हैं। तो इसमें दो तरह के इसके भाव होता है, एक बैरूनी कहलाता है और एक अंदरूनी कहलाता है। इसमें अगर आप देखें तो घराने के ऊपर की तरफ एक एरो लगा हुआ है, बाहर वाली जो लाइन लगी हुई है, एरो पहले ऊपर जा रहा है, फिर बाएं तरफ जा रहा है, और फिर नीचे आ रहा है कारोबारी इदारे तक। फिर कारोबारी इदारे से ये नीचे जा रहा है, फिर दाएं हाथ पे जा रहा है, और फिर ऊपर की तरफ घरानों की तरफ जा रहा है। तो अगर हम ये वाला सर्कल देखें तो इसमें होता क्या है कि हम घराने के लोग या हम हाउस होल्ड्स जो कहलाते हैं, हम क्या करते हैं अपनी, आप ऊपर देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आमलीन की खिदमात बतौर ज़मीन, मेहनत, सरमाए या तंजीम। मतलब हम आमलीन हैं, हम ये खिदमात मुहैया करते हैं कारोबारी इदारों को। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा अशिया खिदमात। तो ये कारोबारी इदारे क्या करते हैं, अशिया खिदमात बनाते हैं, जो कि किन की ज़रूरतें पूरी करती हैं, वापस हमारी हाउस होल्ड्स की तरफ आप देखें एरो आ रहा होगा। तो घरानों से कारोबारी इदारों की तरफ हम उनको अपनी खिदमात पेश करते हैं, और कारोबारी इदारे उसके बदले में हमें अशिया खिदमात बनाकर देते हैं। यह है बैरूनी बहाव, ठीक है, या अशिया का बहाव। उसके बाद अगर हम देखें कि आपको अंदर एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर घराने से जो एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, फिर बाएं तरफ जा रहा है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है अशिया खिदमात की कीमतें, फिर ये ऊपर कारोबारी इदारे की तरफ जा रहा है, फिर यही एरो ऊपर निकलता है और फिर दाएं हाथ पर जाता है, और फिर उसके बाद वापस घराने की तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें, घरानों ने या हाउस होल्ड्स ने अपनी खिदमात की दी किसको, कारोबारी इदारे को। कारोबारी इदारे ने क्या किया, उसके बदले में अशिया खिदमात बना ली, और ये अशिया खिदमात जब उसने बाज़ार में बेची तो उससे जो उसको पैसे मिले, उसमें से उसने इन आमलीन को उनके मुआवजे अदा किए, ठीक है। मतलब आमलीन के मुआवजे कौन कौन से, लगान, उजरत, सूद और मुनाफा। ये भी आपको सेंटर में नज़र आ रहा है कि कारोबारी इदारे के ऊपर जो एरो जा रहा है वो दाएं हाथ पे जब जाता है तो आमलीन के मुआवजे हमें नज़र आ रहे हैं। ये मुआवजे किसको मिलते हैं, हम लोगों को, हम लोग हाउस होल्ड से। फिर आप देखें एरो नीचे आ रहा है और फिर बाएं तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें अशिया खिदमात की कीमतें, मतलब कि हम उन्हीं पैसों से क्या करते हैं, अशिया खिदमात को ख़रीद लेते हैं, और वही पैसे वापस कारोबारी इदारों के पास चले जाते हैं। तो ये बेसिकली कहलाता है कौमी आमदनी का दायरवी बहाव, के घराने एक तरफ अपनी खिदमात मुहैया करते हैं कारोबारी इदारों को, और कारोबारी इदारे इन खिदमात के बदले में उनको पैसे देते हैं। इन खिदमात के बदले में कारोबारी इदारे अशिया खिदमात पैदा करते हैं, जो कि घराने फिर उन्हीं पैसों से उन्हीं अशिया खिदमात को वापस ख़रीद लेते हैं। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब ये एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, कारोबारी इदारे और घराने। जब तक ये आपस में काम नहीं करेंगे तो अशिया खिदमात भी पैदा नहीं होंगे और ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इसको लिखा हुआ है इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो सर्कुलर फ्लो, कि एक सर्कल है, एक नेट है, एक नेक्सिस है, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपस में जाके मिलती हैं, और इन्हीं दोनों की वजह से जो मईशत है वो चलती है और कौमी आमदनी जो है वो पैदा होती है, और ये साइकिल जो है बार बार चलता रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा है कि कौमी आमदनी के जो पैमाइश के तरीके कौन कौन से हैं, और कौमी आमदनी का दायरवी बहाव क्या होता है, और इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो कारामद होते हैं, और जो अपना अपना हिस्सा जो है वो मईशत के अंदर अपना अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।